લાઈવ ચાલુ કરી દીધું. લાઈવ ચાલુ કરી દીધું. અચ્છા, એટલે હમણાં ચાલુ કર્યું છે. આપણે ઓલી એક યોગાની સ્ક્રીન મૂકી દો. આવશે. હા, એ ચીજ કરું છું. તને શું એરર શું આવે છે બાય ધ વે? એક મિનિટ. બહાર નીકળી જાય છે. તું શેમાં આમાંથી છે ને, મોબાઈલમાંથી છે ને, ખાલી છે ને એકવાર શટડાઉન માર અને ફરીથી રીસ્ટાર્ટ કર્યું. ઓકે, તું એક કામ કરી શકીએ ફોટો ઓલો બંધ કરી દઈએ. વાર લાગશે. હેલો, આજુ બરાબર છે બધાને? આવે છે? શું દેખાય છે સ્ક્રીન પર? અરે એક મિનિટ, મને સ્પોટલાઇટ કરજો ને. હા, કરો. હા, એક સેકન્ડ, હું વિચારું છું. એક સેકન્ડ. કૃપાળુ યોગ વેલકમ્સ યુ. વી વુડ સ્ટાર્ટ ઇન 15 મિનિટ્સ. આવી ગયું ને? હા, એ બરાબર આવે મને છે. સ્પોટલાઇટ રાખજો. આ બરાબર છે ને? હવે આજો આમાં હા, બસ બસ. હા, મેં કરી દીધું સ્પોટલાઇટ. સેકન્ડ વાળું રાખો. એક સેકન્ડ. વાર લાગશે. હા, એકવાર જો તું. દર્શનભાઈ, વિડિયો અમે લોકો સ્ટોપ કરી દઈએ. આપણું સ્ટોપ વિડિયો ફોટા આવે છે ને? હા હા. ઓકે, પછી મ્યુટ કરી નાખશું. એક હા. સેકન્ડ, મારે આ સ્ટોપ શેરિંગ કરવું પડશે. આમાં બહુ કર્સરનો બહુ પ્રોબ્લેમ થાય છે. કારણ કે આપણે ચાલુ કરવાનું છે ને મ્યુઝિક પણ. આવી ગયું ને? હા, મને સ્પોટલાઇટ રાખજો. આપણે આ YouTube પર ચાલુ લાગે છે એટલે એના પર સમીરભાઈ, તમારું ઈ YouTube વાળું જે છે ને, લાઈવ છે ને, વિશ્વા સમીરભાઈ, હા, બોલો ને. YouTube પર છે ને તમે ઓલું મ્યુટ કરી નાખો. મ્યુટ કરી દીધું ભાઈ. કરી દીધું. હા, એટલે તમને ડિસ્ટર્બ જ નહીં થાય. યસ યસ. ત્યારે પોઝ કરી દો ને. હા, પરેશભાઈ આવી ગયા. શ્રદ્ધા નથી આવી શકી ને? શ્રદ્ધાને નથી જોઈન નથી થઈ રહ્યું. એ પોસિબલ એને વાંધો નહીં. ઈ અને અશ્વિનભાઈ હું છું WhatsApp ગ્રુપ પર છે. આપણે એમને અટેન્ડીઝ માં નાખીને લાવીએ તો? હા, એમ જ કરવું પડશે. અત્યારે લઈ લો ફટાફટ. બીજા કોઈ આવ્યા નથી. લઈ લેશું શ્રદ્ધાને. હા, એમ કહું છું હું એને ફોન કરી. કેટલા વાગ્યા? 7:11 થઈ જાય. હજી વાર છે. આપણે 7:17 કે મેં સ્ટાર્ટ કરશું પેલું 15 મિનિટ્સ. આ જોઈ લો ને બધા એકવાર. હું જરા પેલું કરું છું. એકવાર આપણે મ્યુઝિક અને સ્ક્રીન જરા ચેક કરી. હમણાં કોઈ છે નહીં ને, તો તને ફટાફટ અંદર એન્ટર કરી નાખ. હર્ષિલ, આપણી YouTube ની લિંક જનરેટ કરી લે. એટલે રેડી રાખીએ આપણે બધા ગ્રુપ કરવાની. હા હા હા, તું કર ને. અમે કરીએ તું કર. હર્ષિલ, તારો હા, 101 બનાવી દેજો ને સમીરભાઈ. હા, કો હોસ્ટ બનાવજો ને મને. ઓકે. દર્શનભાઈ મ્યુટ પર છો તમે કદાચ. હા, લિંક શેર કરી દીધી છે ગ્રુપ પર. YouTube ની લિંક. યસ. તો એ 7:20 નાખીશ, હમણાં નથી નાખતો. દર્શનભાઈ બનાવી રાખું. દર્શનભાઈ બી નથી અત્યારે. હેલો, તું એક કામ કર. ઝૂમ છે ને, તું અનઇન્સ્ટોલ કરીને ફરીથી ઇન્સ્ટોલ. આઈ ગેસ ઝૂમ માં જ પ્રોબ્લેમ છે. આપણે અત્યારના YouTube પર લાઈવ છે એટલે બધા મ્યુટ પર જતા રહીએ બેટર છે. પોઝ કર્યું છે. મેં તો આને પોઝ કર્યો છે. ઇન્સ્ટોલ કર. અનઇન્સ્ટોલ કર. હા, અનઇન્સ્ટોલ કરીને જો ના થાય. હા, બધાના કેમેરા બંધ કરી દઈએ અને મ્યુટ પર જતા રહીએ. ઝૂમ કરી ફરીથી. ઓકે, તો તને આવી જશે. નહીં તો તારા સેટિંગ્સમાં પણ આવશે. હા, મ્યુટ પર જતો રહું છું. એક સેકન્ડ.
મેં વિડિયોઝ યુટ્યુબમાં વિડિયો મેં પોઝ કરી રાખ્યો છે. યુટ્યુબમાં વિડીયો પોઝ કરશું એનાથી કંઈ નહીં થાય, અહીંયાથી થવું જોઈએ. ઓકે એટલે અત્યારના આપણે લાઈવ છીએ જ. ઓકે ઓકે કરવું છે સ્ટાર્ટ? બધાના કેમેરાસ બંધ કરી દો, ખાલી સરનું રહેશે. અને સમીરભાઈ, હા એવું હોય ને તો હવે હર્ષિલ સ્પોટલાઇટ નું તારે ધ્યાન રાખવાનું છે. હા ચેટ બધી જઈ ગઈ છે યુટ્યુબ પર અત્યારના. ચેટ બધું યુટ્યુબ પર આવી રહ્યું છે અત્યારે આપણે જે કરી રહ્યા. યસ ઇટ ઓલરેડી સ્ટાર્ટેડ. એટલે ચલો. આ વોલ્યુમ બરાબર છે એટલો? હા દર્શનભાઈ હર્ષિલ, એકવાર આ ફૂલ સ્ક્રીન થઈ જાય ને પછી આ બ્રોડકાસ્ટ દબાવી દેજે એટલે અટેન્ડીઝ આવવાનું સ્ટાર્ટ કરી શકશે. શ્રદ્ધા વિડિયો ઓફ કર દે. હા બરાબર છે દર્શનભાઈ, તમે ઓલું સ્ક્રીન કરી નાખો ને. હરેશનો બી ઓન છે વિડિયો. હરેશ ઓફ કરજો. દર્શનભાઈ આપણે ઓલું બેકગ્રાઉન્ડ સ્ક્રીન કરો ને. વોલ્યુમ ધીમો રાખજો.
जय भगवान। आप सबका फिर से स्वागत है। कल आपने ब्रीदिंग की बेसिक टेक्निक सीखी। अब मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शेयर करूंगा। आपने द सीक्रेट करके बुक जरूर पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर पढ़ लीजिए। ये यूट्यूब पे भी मूवी के फॉर्म में अवेलेबल है। उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज बताई है कि लाइफ में कुछ एक्सीडेंट से नहीं होता। आज आप सब यहाँ इतनी जल्दी तैयार होके आए, वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, नेचर ने डिजाइन की हुई चीज है। लाखों करोड़ों लोगों में से आप लोगों ने जिन्होंने यहाँ रजिस्ट्रेशन किया था, उनमें से कुछ लोगों यहाँ आज इसका फायदा ले रहे हैं। उसके लिए धन्यवाद। पहले तो एक सवाल आता है, व्हाई दिस प्रोग्राम, और हमें योग, प्राणायाम, मेडिटेशन क्यों करना चाहिए? बहुत सरल उत्तर है, जो आप समझ सको तो। हमारे पास जो भी कुछ अवेलेबल है वो कुछ होने के बाद है। एलिमेंट आती है होने के बाद, मेडिसिन डिसीज होने के बाद, हॉस्पिटल मेडिसिन से कंट्रोल में चीज नहीं आती है और डिसीज बढ़ जाती है तो हॉस्पिटलाइजेशन आती है, वो भी बाद में। इवन आपका मेडिक्लेम, हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी हॉस्पिटलाइजेशन के बाद में। एक प्राणायाम ही ऐसी चीज है जो हेलमेट न होने के लिए उनसे पहले कर सकते हैं। यह मैंने 23 साल पहले, जब मेरी उम्र 34 साल की थी, तो मैंने ये मौजूद किया और मुझे प्राउड है कि 23 सालों में मुझे कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ना ही मुझे डायबिटीज है, ना ही ब्लड प्रेशर है। और यहाँ मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ। जो भी मेरे साथ योग का लास्ट 23 साल से, कुछ लोग 15 साल से, 20 साल से उसका अभ्यास करते हैं, वो सभी का एक्सपीरियंस है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे 2 दिन का कैंप ना लेके अपने पार्ट ऑफ लाइफ में उसे ले लीजिए। अगर आपने यह सिंपल बात समझ ली तो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। एक और बात मैं आपसे शेयर करूंगा, जो हमारे शरीर के बारे में कुछ जानकारी है। हमें जो दिखता है, जो हमें आईने में हम हमारे शरीर को देखते हैं और उन्हें ही साफ रख सकते हैं। हमारे भीतर भी एक शरीर है जिसे हमें पता ही नहीं है और हम वो साफ भी नहीं कर सकते। हमारे पास कोई भी वो साफ करने के लिए टेक्निक नहीं है। सिर्फ योग और योग ही एक चीज ऐसी है जिसमें शरीर को अंदर से साफ रख सकता है। सिर्फ शरीर को अंदर से साफ नहीं रख सकता है, मन को भी साफ करता है और मेडिटेशन जो स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाता है। अगर ये जो चीज समझ में आ गई तो एक और चीज, ये ऑनलाइन सिर्फ 500 रुपये में अवेलेबल है, जहाँ पे हम लोग हर रोज ये प्रैक्टिस करते हैं। तो एक लाइफ का एक पार्ट बना लीजिए। बॉटम लाइन, इस पार्ट ऑफ लाइफ बनाइए और इसका कोई पर्याय नहीं है, वो समझ लीजिए। सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे का ले जाइए। थैंक यू वेरी मच। जय भगवान सबको। नमस्कार। आज फिर से हम लोग योग सीखने के लिए, योग जानने के लिए आज फिर से आप लोग सुबह उठ के यहाँ आ गए। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। भूषण भाई ने एक बात अच्छी बताई कि नेचर ने जो डिजाइन किया है उसी हिसाब से हम लोग योग करते हैं। अच्छी बात है।
मगर ये भी बात है, योग में ऐसे बोला जाता है कि जिसके नसीब में योग होता है, योग करने का योग होता है, तो ही वो योग में जुड़ सकता है या योग कर सकता है। और योग कितना करना, वो भी योग की बात है। जितने अपने योग लिखा होगा उतना ही योग कर सकते हैं, पर जितना भी करो, करना बहुत जरूरी है। जो भी भूषण भाई ने जो भी बताया, सही बताया है कि जो भी इलाज जो है कुछ किसी भी चीज का, वो होने के बाद में होता है। योग ऐसी चीज है मेरे, देखो हम लोग जो बात करते हैं वो ऐसे ही नहीं करते, इतने सालों के अनुभव के बाद में करते हैं। 32 साल तो मुझे हो गए योग कराते कराते। और जिसने भी किया है मेरे पास आके, आज तक मैंने ऐसा ऐसा देखा नहीं कि उसको हॉस्पिटल में उसकी खबर लेने को जाना चाहिए। कभी कोई मैं इतना सुना भी नहीं है कि यह व्यक्ति इतना बीमार है। और हम लोग ऐसे भी नहीं कराते हैं कि पर्टिकुलर यही चीज करो, इसके लिए यही चीज करो, ऐसा नहीं। हम लोग का एक फिक्स अभ्यास कर्म हम लोग ने फिक्स किया है, प्राणायाम के बारे में भी और आसन के भी बारे में भी। और उनको हम लोग ने नाम दिया सर्वरोग हर। जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी है, अगर इतना करे तो उसको जबरदस्त बेनिफिट मिलता है। और डिजाइन भी ऐसी की है कि छोटे में छोटे बच्चे से लेके एकदम बुजुर्ग भी हुए। मेरे क्लास में 82, 85, 75 ऐसे भी लोग आते हैं और आसानी से करते हैं। तो जो बाहर हम लोग ने योग के बारे में देखा है, योग के बारे में जाना है, योग के बारे में समझा है, बहुत लोग तो पहले से ही फिक्स कर देते हैं, भाई योग करवाना, योग करना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि इतने जटिल आसन है और जटिल क्रियाएं बाहर दिखाई है, बाहर बताते हैं। तो बहुत से लोग तो पहले से ही ना हो जाते, भाई मेरा काम नहीं है। ऐसी योग में ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि कोई लोग नहीं करते। एकदम बीमार के बीमार खटिया में भी बीमार पड़ा हो तो वो भी योग कर सकता है। योग की सब क्रियाएं नहीं, मगर कर सकता है। अरे योग में सब तरह की क्रियाएं है, सब तरह की क्रियाएं, मगर इफेक्टिव उतनी है जितनी आप जटिल करो। तो वैसी सामान्य क्रिया भी उतना ही बेनिफिट देती है, क्योंकि हमारी बॉडी की रचना ही ऐसे हुई है कि जो हम लोग कर सकते हैं। देखो हम लोग जितना पचा सकते हैं उतना ही खाते हैं ना, और वही अपने को हजम होता है। तो उसी हिसाब से योग की क्रिया भी जितनी है हम लोग हो सकती है उतनी करते हैं, और हम लोग को हजम होती है, और उसके फायदे भी उतने ही मिलते हैं। माने बहुत सी गैर समझ है लोगों के दिमाग में फैलेली है, वो दूर करने के लिए ही ये 2 दिन का शिविर हम लोग किया है कि अपने मन में ऐसा है कि कैसे होएगा, ये कैसे कर सकते हैं, तो कभी करना है, कितना करना है, कैसे करना है, वो दिखाने के लिए 2 दिन है। 2 दिन में तो ऐसे तो 2 दिन बोल सकते हैं, मगर कल भी मैंने बोला था 2 दिन में खाली 2 घंटे है। तो 2 घंटे में क्या सीखेंगे, क्या करेंगे, मगर आपके मन में जो गैर समझ है, और सही तरीके से आजकल जो फेमस जो प्राणायाम है वो सही तरीके से कैसे करनी चाहिए, वही दिखाने के लिए ये 2 घंटे का या 2 दिन का ये शिविर रखा है। कल हम लोग ने जो डीप ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, उज्जाई प्राणायाम, नाम बहुत से फेमस जो नाम है, कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम के बारे में बोला था। आज फिर से वही आपको रिवीजन कराएंगे और क्रमबद्ध। देखो कोई भी क्रिया करते हैं, योग की क्रिया करते हैं, कोई भी करते हैं, तो उसकी एक रिदम होनी चाहिए।
अगर रिदम से होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद रिदम से कुछ होएंगे तो ही उसका बेनिफिट्स मिलेगा। देखो 2 चीजें है योग में एक तो रिदम है और एक सातत्य है। सातत्य का मतलब रोज होना चाहिए। आज किया, कल नहीं किया, परसों किया, वो भी नहीं चलता है। और फिक्स समय भी होए। अगर मैं 7 बजे करता हूँ तो मैं 7 बजे ही करूंगा, तो उसका फायदा बहुत ज्यादा होता है। और हम लोग के क्लास भी जो है वो हमेशा नियमित ही चलते हैं। 7:30 अभी जो ऑनलाइन पे चलते हैं तो 7:30 पे 1 मिनट भी हम लोग ज्यादा नहीं करते। ये योग के सामान्य नियम है कि सही समय पर, सही जगह पे और सही टाइम पे और सही मात्रा में अगर करेंगे तो ही उसका बेनिफिट्स हो सकता है। तो ये आपकी जो गैर समझ योग के बारे में है वो थोड़ी दूर करनी है। एक देखो, एक तो कल डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस कराई थी हम लोग, कैसे डीप ब्रीथिंग कर। देखो बहुत बार जहां भी जाते हैं तो बोल देते भाई गहरी सांस लो, डीप ब्रीथिंग करो, अनुलोम विलोम करो, ये सब करने को बोलते हैं। मगर कैसे, पहले तो सबसे पहली जो स्टेप्स है वो श्वास कैसे लेना है वो तो हमको आना चाहिए ना। अगर मैं आप लोग सब बैठे हैं, अगर श्वास कैसे लेना है वो टेक्निक है आपको मालूम नहीं है, तो आप कैसे श्वास लेंगे? गहरी, मैं बोलेगा गहरी श्वास लो, बस इतना करेंगे, लंग्स तलक, गले तलक में श्वास आएगा नहीं। मगर अगर गले से आप खींचते हैं तो पूरे लंग्स जब तक लंग्स पूरे भरे नहीं, गले तलक भरता नहीं, तब तक श्वास बंद नहीं होता। ऐसे जरा देख लो, मैं गहरा सांस लेता हूँ, अब रीचेक करूंगा, ये गहरे सांस, ये गहरी सांस हो गई। अभी ऐसे लगे तो कोई कोई उसका फायदा ही नहीं। आप लोग जाते हैं, टीवी में भी जाते होंगे, टीवी में देख के भी अभ्यास करते होंगे, मगर गहरे श्वास कैसे लेना है तो मैं कल आपको टेक्निक सिखाया था, आज वापस करेंगे मेरे साथ, सब लोग करना है। देखो एक दिन में कि एक दिन में, अभी एक आज का ही दिन है, तब सीख लेंगे तो ही आप अच्छे से कर सके और समझ के कर सकेंगे। देखो नहीं तो कितना भी करेंगे, अगर समझ नहीं होगी और सही तरीके से नहीं करेंगे, तब कितना भी करेंगे तो उसका बेनिफिट सबको फायदा उसका मिलेगा नहीं। तो पहले पहले कल हमने 2-3 स्टेप्स आपको बताए थे, वो स्टेप्स वापस करेंगे। देखो पहले ऐसे करना है, ऐसे सब लोग, आप लोग मेरे साथ करना है, मुझे तो आता है। ऐसे करना है। दूसरा जो स्टेप्स है वो ऐसे करना है, और तीसरा जो स्टेप्स है वो मुंह बंद करना और नाक से करना है। ऐसे करेंगे तो ही गहरी श्वास आप ले सकेंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही हो जाएगा। तो वापस एक बार अब सब लोग साथ में तीनों तीनों एक साथ में करेंगे। मैं जैसे करते जाऊंगा, चेंज करते जाऊंगा, अपने आप लोग भी करना है। दूसरा स्टेप, अभी तीसरा स्टेप, हाँ ये टेक्निक हो गई। सांस कैसे लेना और कैसे छोड़ना है योग में, उसके लिए नाम भी है। पूरक माने श्वास को लेना है, रेचक माने श्वास को बाहर निकालना है। देखो श्वास जब लेते हैं
तो थोड़ा सीना और पेट थोड़ा फूलना मांगता है, और जब बाहर निकालते हैं तो पेट को थोड़ा अंदर लेना है, तो अपना जो ये पर्दा है वो ऊपर करेगा और ऊपर से धक्का देगा तो श्वास बाहर निकलेगी। तो जब सांस लेते हैं तभी ये सीना और पेट फुकाना है, और बाद में जब करते करते बाहर निकलना तो पेट को अंदर लेना। ये रिदम अभी मैं बोलेगा तो आपसे होएगी नहीं, मगर ये करते करते ये सब बहुत सी चीजें हैं, ये करते करते अपने आप होने लगती है। तो अभी डीप ब्रीदिंग करो, मैं पूरक बोलूंगा तो आपको सांस लेना है, और रेचक बोलूंगा तो सांस को छोड़ना है। हाँ, एकदम सीधे बैठ जाइए सब लोग एक साथ। पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। हाँ, ये देखो, ये डीप ब्रीदिंग हो गया, उज्जयी प्राणायाम। अगर सब लोग, अब आप लोग अगर घर में करना चाहते हैं तो अपने मन में ये पूरक रेचक बोलते जाने का और करेंगे तो सही रिदम पकड़ेगी आपकी। मन में ही बोलने का, पूरक ऐसे बोलने का, पूरक, मन में ही बोलने का, रेचक। ये क्रम से करेंगे पूरक रेचक की, तो इसकी रिदम बैठनी मांगती है, इसकी रिदम बैठ जाएगी। नहीं तो आप लेंगे छोड़ेंगे, ले दे छोड़ेंगे, रिदम बैठनी मांगती है। कोई भी चीज रिदम से करेंगे तो ही उसका फायदे होते हैं। तो ये जो पहला जो प्राणायाम है, डीप ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, ये करते रहना चाहिए। ये बहुत अच्छी अच्छी बात है। दूसरा जो आपको बताया था, कपालभाति, बहुत से लोगों को मन में ऐसे क्वेश्चन भी आए थे, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से अगर देखा होगा, सुना होगा, शायद कभी किया भी होगा, और बहुत से लोग करते भी होंगे, करते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर मैं कल बोला था ऐसे, कपालभाति प्राणायाम एक्चुअली प्राणायाम तो है नहीं, वो क्रिया है। मगर उसको प्राणायाम प्राणायाम करके अच्छा बेनिफिट्स मिलता है, इसके लिए जोड़ दिया है प्राणायाम के साथ में। देखो, प्राणायाम, एक्चुअल प्राणायाम जो है वो अष्ट कुंभक ही है, खाली 8 प्राणायाम मुख्य है। शीतली है, शीतकारी है, उज्जयी है, सूर्य भेदन है, प्लाविनी है, मूर्छा है। ये मुख्य अष्ट कुंभक जिसको बोलते हैं, ये 8 प्राणायाम है। मगर उसमें चेंज होते 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 बहुत से प्राणायाम, अभी तो अपने अपनी मर्जी से सब लोग, ये जो एक्सरसाइज भी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उसी को भी प्राणायाम से जोड़ दिया है। इसी तरह से ये जो कपालभाति है उसको भी प्राणायाम में जोड़ दिया है। मगर एक्चुअल जो है वो शुद्धिकरण की क्रिया है। बहुत से लोगों को क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न हुआ होगा, कल मैंने बोला था कि गले से नीचे नहीं उतारना है, तो गले से नीचे नहीं उतारेंगे तो बहुत से जन को ऐसे क्वेश्चन आए थे, गले से नीचे नहीं जाएगा तो उसकी इफेक्ट कैसे होगी। उनकी सोच अच्छी है, उनकी समझ भी अच्छी है, उसकी इफेक्ट कैसे, देखो ये सफाई की ये है। अपने अंदर जो भी अशुद्धियां पैदा होती है ना, वो जो बाहर अपने को कूड़ा कचरा दिखता है,
वैसी नहीं होती है। हर एक खराब चीज की एक निश्चित उसका आकार है, और उसी तरह से अशुद्ध एक निश्चित रूप में ये पैदा होती है। देखो, खुराक हम लोग खाते हैं, मगर उसका जो परिवर्तन होता है, उसका जो स्वरूप जो होता है, वो मल स्वरूप हो जाता है, वो मल के रूप में होता है। पानी पीते हैं हम लोग, तो उसका अशुद्ध स्वरूप जो है वो मूत्र के स्वरूप में वो ट्रांसफर हो जाता है। पसीना भी ऐसे ही एक है। उच्छ्वास भी जो है, अब श्वास बाहर निकलते हैं, उसमें भी कार्बन ऑक्सीजन नहीं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकल जाता है। तो हर एक अशुद्धि का एक स्वरूप है। तो अपने लंग्स में भी जो भी खराबी आती है, जो भी बाहर से भी कचरा आता है, कल मैंने बोला था ऐसे ही, बाहर जो पॉल्यूशन में हम लोग रहते हैं, एक मिट्टी धूल है, दूषित वायु है, जम्स है, ऐसे वो सब अंदर जाते हैं, मगर अंदर जाने के बाद में अशुद्धि का उसका स्वरूप बदली हो जाता है। जैसे ये मैंने बोला, वो स्वरूप उसका चेंज होता है। तो यहाँ पे जो स्वरूप है वो कफ के रूप में, एक चिकास के रूप में, और एक थोड़ा चिकास वाला पानी के रूप में उसका स्वरूप बदल जाता है। तो ये जो कपालभाति हम लोग करते हैं, तो ये जो काम करती है, ऐसे मैंने कल बताया था, ऐसे बहुत सी जगह पे ऐसे स्ट्रोक मारता है, ऐसा नहीं है, ये लेना भी है, छोड़ना भी है, ऐसे ऐसे। तो ये जो काम करती है ना, ये ड्रायर का काम करता है। ड्रायर अंदर सूखा तो नहीं देती है, मगर अंदर डिस्ट्रॉय कर देती है। आप लोग देखा होगा, ड्रायर ऐसे चलाते हैं हम लोग, जब बाल सुखाते हैं तो ये ड्रायर चलाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ड्रायर अंदर घुसा के चलाएंगे, ये इतने दूर से भी चलाएंगे तो अंदर आप देखोगे तब पर तो ये आपके बाल सूख जाते हैं। इसी तरह से अंदर जो अशुद्धि का स्वरूप जो हुआ है, चिकास हो गई, चिकास वाला पानी हो गया है, अशुद्धि। देखो, जो रोज प्राणायाम करता है ना, वो कितनी भी अशुद्धि जाएगी तो कभी भी उनको ये कफ तो होएगा ही। मगर मैं देखा है, हम लोग जो जो माहौल में रहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग, सबको यही प्रॉब्लम होता है। हम लोग के क्लास में जो नए जुड़ते भी है ना, तो सबसे ज्यादा उनका यही प्रॉब्लम, श्वसन का प्रॉब्लम होता है। वो कल मैंने ये बीमारियां सब बताई क्या, फेफड़े में पानी भर जाना, अस्थमा, दम चढ़ना, टीबी हो जाना, श्वास नली का सूजन, गले में सूजन आ जाना, सर दुखने लगना, स्लो धीरे धीरे बुखार आ जाना, ब्रेन में खून कम पहुंचना, याद शक्ति कम हो जाना, डिप्रेशन में आ जाना, चिंता में आ जाना, ये सब जो है अंदर सफाई नहीं होती तो ये भी बीमारियां होती है। और वो जो कार्य जो करता है, कल मैंने बोला था कि रक्त का शुद्धिकरण अपने फेफड़े में होता है, अपने श्वसन तंत्र में होता है, पूरे बॉडी में जो ऑक्सीजन हर एक समय मिलता है, तो इससे मिलता है। और सबसे ज्यादा जो अभी आजकल बहुत वो चला है, रोग प्रतिकारक शक्ति। आपने देखा होगा, हर एक चीज में बोलते हैं रोग, मेरे को जो आता है वो सब में रोग प्रतिकारक शक्ति, यही चीज है। ये जो है लंग्स में ही रोग प्रतिकारक शक्ति ये पैदा होती है। इसीलिए आज आप सुना होगा, सब लोग अलग अलग अपने अपने रेमेडी बताते हैं, मगर उसके साथ ये तो बोलते ही है कि प्राणायाम करो, प्राणायाम करो। इसकी वजह यह है कि इसी से ही अपने रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। तो ये जो अंदर अशुद्धि अगर जाती है तो बंद नहीं होता है, मगर उसकी कार्य क्षमता है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से कपालभाति करेंगे तो अंदर जो ये जो कफ और ये चिकास जो है वो अपने आप सूख जाती है। और साथ में रोज आप प्राणायाम करते हैं तो फिर होने का चांस ही नहीं है। तो जो गैर समझ थी लोगों में, वो गैर समझ दूर करने के लिए
हम लोग ने शिविर किया है। तो आज कपालभाति वापस करेंगे। आप लोग जो करते होगा, जो समझ होगा, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं, मैं कुछ मना नहीं करता, मगर ये सही रीत है। और कपालभाति में कल कल भी बोला था, ये प्राणायाम नहीं है, ये षटकर्म की क्रिया है। आप कल गूगल में ये डाल के भी देखना कि किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था, गूगल में हम लोग सोचा, हम लोग ने सर्च किया तो ये दिखा या नहीं, मगर गूगल में भी ये सर्च करना कि षटकर्म में कौन सी क्रियाएं हैं। जो योग में षटकर्म जो है उसमें कौन सी क्रिया, ये अगर डाल के देखेंगे तो उसमें कपालभाति उसमें ही आएगी। उसके 6 स्टेप है, नेति, दोती, नवली, बस्ती, कपालभाति और त्राटक। तो गूगल में जो जिसने खाली कपालभाति डाल के देखते को, गूगल का क्या है, जो हम लोग फीड करते हैं वो ही हम लोग को दिखाता है। अगर जो करता है वो बोलता है, तो षटकर्म की क्रिया में डाल के देखो गूगल में कि भाई षटकर्म की क्रिया में कौन सी क्रिया है, तो उनको दिखाएंगे कपालभाति ये जो है ये साफ करने की क्रिया है। तो हम लोग सब साथ में करेंगे कपालभाति की क्रिया। ऐसे करना है, देखो देखो आप, हम लोग बहुत सी जगह पे सुना है कपालभाति क्रिया करो 10 मिनट करो, कपालभाति क्रिया करो 15 मिनट करो, कपालभाति करो दिन भर 2-4 बार करो। ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं। 1 मिनट भी आप कर सकेंगे, अगर मैं कराता हूँ 1 मिनट भी पूरा कर दे तो भी बहुत बड़ी चीज है। और ये 1-1 मिनट का 2 बार दिन में किया, आपका पूरा काम हो गया। अभी 2 मिनट कराएंगे तो आपका ये वो हो जाएगा। तो जो सुना है उसको सही बताना ये मेरा काम है, उसीलिए हम लोग आए हैं। तो कपालभाति करेंगे और मैं सेकंड गिनूंगा, 60 सेकंड में एक पूरा हो जाएगा एक राउंड। चलो स्टार्ट कर दो ऐसे। 5 सेकंड, 10 सेकंड करना बरोबर है। श्वास लेना है, छोड़ना है, गले से नीचे नहीं उतारना है। 15 सेकंड करते रहिए। देखो 1 मिनट में बंद नहीं करना है, 1 मिनट पूरा करो, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें और क्या फर्क है। 25 सेकंड, 30 सेकंड, 35 सेकंड, अभी 35 सेकंड ही हुआ है और 10 मिनट कैसे करेंगे। 40 सेकंड, 45 सेकंड, 50, 55 सेकंड। चलो 5 सेकंड बाकी है, करो बरोबर जरा। हाँ जरा ठहर जाओ, जरा ऐसे कर दो, जरा ठहर जाओ। देखो 1 ही मिनट किया, अगर मैं अभी 3 बार कराऊंगा आज और 2 बार कराऊंगा, और ये करने के बाद में आप फील करना पूरा दिन और दोपहर तक, शाम तक, तो आप लोग मैंने कैसे किया, कितना फ्रेशनेस लगता है। आप करना और हो सके तो यहाँ पे लिख के बताना कि फ्रेशनेस क्या होती है, इसका स्ट्रेंथ क्या है। सब लोग को लगता है 1 मिनट में क्या हो जाए, 1 मिनट नहीं, आधी मिनट में भी बहुत सी चीजें हो जाती है। भूकंप आता है तो भूकंप जो आता है 1-1, 2-2 मिनट, 10-10 मिनट नहीं आता है, 5-10 सेकंड, 15 सेकंड या 20 सेकंड ज्यादा से ज्यादा। और उसकी इफेक्ट कितनी होती है। सुनामी जो आ जाती है तो क्या घंटे न घंटे थोड़ी आती है, 2 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं। तो कोई चीजें ऐसी रहती है 1 मिनट में भी उसकी इफेक्ट होती है। वापस एक बार करेंगे, वापस मैं सेकंड बोलूंगा। चलो स्टार्ट। 5 सेकंड, 10 सेकंड, जो 1 मिनट करना है मगर पूरा करना है। 20 सेकंड, 25 सेकंड,
30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड, करो बरोबर जरा, 45 सेकंड, 50, 55 सेकंड, चलो 5 सेकंड है, करो। हाँ बस 1 मिनट हो गई, जरा ठहरो ठहरो ठहरो, जरा वापस से कर लेना है, जरा ठहर जाओ। देखो मैं बोला ऐसे, ये 2 बार हुआ और 1 बार मैं कराऊंगा। अगर इतनी इफेक्टिव है, आप सोच नहीं सकते। मैं बोला ना कि आज आप फील करना कैसी फ्रेशनेस लगती है आपको, आप इतना फ्रेश महसूस करेंगे, यही तो मेन है। और यहाँ पे खाली फ्रेश रहने की ये क्रिया नहीं है, स्वस्थ निरोगी रोग रहित पीड़ा रहित जीवन जीने के लिए ये सब क्रिया है। और इसकी खासियत ये है, अगर कपालभाति सीख लेते हैं तो उसमें कोई साधनों की आवश्यकता नहीं है, कोई साधन लेना नहीं पड़ता है, कहाँ पे जाने की भी जरूरत नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट भी लेने की जरूरत नहीं है, और कोई चुकाने की भी जरूरत नहीं है, तो आपको कोई पैसा भी नहीं देना पड़ता। और स्वस्थ निरोगी तंदुरुस्त रोग रहित जी सकते हैं, इतनी इसकी स्ट्रेंथ है। मगर मैं बोला ऐसे कि ऐसे हो सकता है, अभी एक बार लास्ट करेंगे। देखो श्वास लेना है छोड़ना है, मगर देखो पेट को ज्यादा हिलाना कि ऐसे कुछ करना नहीं है, अपने आप पेट हिलेगा। ये लेंगे छोड़ेंगे तो अपने आप पेट हिलेगा। बहुत से लोगों को ऐसी क्वेरी होती है, मगर देखो 2 घंटे में बताना है कराना है तो पॉसिबल नहीं रहता है, मगर आप करेंगे तो अपने आप पेट हिलने लगेगा, ऐसे तो नहीं होएगा। तो पेट आपका स्टमक हिलना ये जरूरी है, ऐसे ऐसे करेंगे तो हिल सकता है, ऐसा नहीं है। देखो एक तो ये मूवी ये मोबाइल पे करने को था, तो पूरा सब दिखाने के वो एंगल बदलना ये करना, ये सभी तो अपने पास है नहीं। तो आप करेंगे कि अपना स्टमक अपना पेट हिलने लगेगा। चलो एक बार वापस कर लेंगे, चलो स्टार्ट। 5 सेकंड, 1 मिनट करना है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट आप पूरा नहीं कर सकते, मैं चैलेंज देता हूं। 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, 35 सेकंड, करो बरोबर, जरा बरोबर करना और पूरा करना है। थोड़ा कम मैंने बरोबर समझो गया है तो समझ नहीं है, मगर करना पूरा है। 40 सेकंड, 45 सेकंड, 50, 55 सेकंड, जरा 5 सेकंड बाकी है, कर लो जरा। हाँ बस 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 कर जाओ, अभी फ्रेश हो जा रहे एकदम, फाइनली फ्रेश हो जाओ, फाइनली। ये कपालभाति और कैसे करना ये बताया, उसकी असर जो जो जिनके सवाल थे कि नाक से करते या गले अंदर कैसे होगा, तो हेयर ड्रायर का अंदर सुखाने का, अंदर उसको सोच लेने का काम करते। कोई चीजें ऐसी है कि अपने समझ में नहीं आती, और अंदर वो क्रिया अपने आप होती है। देखो हम लोग भोजन करते हैं, रात को 12 बजे भी भोजन किया कि कितने बजे भी भोजन किया, तो भोजन कर लेने के बाद में अपने को कुछ नहीं करना पड़ता है, वो प्रोसेस अपने आप होता है। वो अपन वो कुछ करते नहीं, जैसे गोली भी खाते हैं तो गोली पेट में उतार दिया, उसके बाद में हम लोग को कुछ करना नहीं है, वो अपने आप ही होता है। तो ये भी जो है वो क्रिया किया, फिर उसका जो कार्य है अभी क्या अभी किया और अभी सूख गए नहीं, मगर उसका कार्य चालू हो जाता है।
तो खाना खाते हैं, ये सिद्धांत याद रखने का। तो रात भर हम लोग बैठ के उसको पचाने को तो नहीं बैठते ना। कितने भी बजे खाओ, कुछ भी खाओ, उसका काम है वो करेगा। तो ये भी है, अब कपालभाति किया, उसका काम है वो करेगी। और ये जो क्रिया है कपालभाति, ये जो भी क्रिया हम लोग जो कराते हैं, वो परंपरा युक्त ऋषि मुनियों ने जिसका रिसर्च किया है उसी हिसाब से कराते हैं। तो परंपरा युक्त चली आई वो विद्या है। तो उसमें हम लोग जो भी बताए वो करते हैं। तो जहां भी आप करते होगे, जो भी करते होगे ना, तो कंपैरिजन नहीं करना, जो ठीक लगे वो कर सकते हैं। हमारे क्लास में हर मंडे को और ट्यूसडे को ये क्रिया कराते हैं कपालभाति। अभी करेंगे भस्त्रिका, वो रोज करते हैं। ये अभी भस्त्रिका में और कपालभाति में ही भ्रांति हो गई। भस्त्रिका में श्वास लेना नहीं है, खाली बाहर फेंकना है। तो बाहर फेंकना है, वो पेट से धक्का मारना है। देखो, छाती और बीच में, अपने पेट के बीच में एक पर्दा है, डायाफ्राम बोलते हैं उसको, या तो उदर पटल उसको ऐसे बोलते हैं। तो पेट से उसको धक्का मारना है, तो ऊपर धक्का मारेगा, सांस बाहर निकलेगी। लेना नहीं है, अंदर आएगी, अपने आप आएगी, वो अपने को मालूम भी नहीं पड़ता। तो लेना नहीं है, खाली छोड़ फेंकना है। देखो ऐसे, ऐसे करना है। चलो सब एक साथ में करेंगे भस्त्रिका। हाँ, ये भी मैं बोलूंगा, ये भी इसके बारे में बहुत भ्रांति है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट करने का, 100, 200, 300, 500 स्ट्रोक मारेगा। मैं खाली आपको 40 स्ट्रोक माराऊं। अभी 40 स्ट्रोक भी आप कैसे मारते हैं और कैसे करते हैं तो आप देख लो, होता है कि नहीं पूरे 40। चलो स्टार्ट। हाँ, जरा रुक जाइए, जरा रुक जाना, थोड़ा ये कर ले। देखो, ये 40 श्लोक मारे हम। अभी भस्त्रिका का काम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका एक तो मेन काम है कि सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन उससे थोड़ा फास्ट करना है। बहुत से लोगों की फरियाद रहती है खून बरोबर शरीर में घूमता नहीं है, माथे में, ब्रेन में खून जाता नहीं है, या हाथ में खून जाता नहीं है। तो ये जो है भस्त्रिका, एक तो खून जो है वो खून भेजने का काम करती है सबके, माने ब्लड सर्कुलेशन फास्ट करती है। इसीलिए ये जो नॉर्मल हम लोग जो 40 है नॉर्मल है। अगर जिसको ब्लड प्रेशर है, और आज के जमाने में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है, ज्यादा से ज्यादा, इसमें ब्लड प्रेशर शूट अप हो सकता है अगर समझ के बिना ज्यादा करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, बड़ी उम्र के जो है, तो तुरंत अपना माथा घूमने लगेगा, चक्कर आने लगेंगे अगर ज्यादा। इसीलिए समझ देने के लिए है, 40 नॉर्मल है और इफेक्ट उतना ही है। ज्यादा करेंगे, देखो योग जो है, योग के ऐसे बोलते हैं कि योग जो करता है वो योगी भी होता है। योग समझ बिना किया तो रोगी भी हो सकता है, और कुछ भी समझ बिना किया तो भोगी भी होता है। तीनों कुछ भी हो सकता है। तो सच्ची समझ से करेंगे तो ही उसकी इफेक्ट होगी। और एक बार कर लेंगे, चलो स्टार्ट। हाँ, रुक जाओ, रुक जाओ जरा। ये
ये पद्धति है। अब घर पे करेंगे, ट्राई करके देखना 40 से ज्यादा आप कितना कर सकते हैं, और ज्यादा किया तो उसकी क्या असर होती है आप देख लेना। अभी आज इतना किया है तो आप पूरा दिन कैसे महसूस करते हैं ना, वो बाद में अगर लिख के बताएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा क्या डिफरेंस जो है, आपको ये पता चलेगा। देखो योग में जो है पूरक भी है, रेचक भी है, और तीसरा जो है कुंभक है। कुंभक माने श्वास को रोकना है। उसके लिए बहुत समझाना पड़ता है, कितने टाइम रोकना, कैसे रोकना, कहाँ से श्वास निकालना, कैसे करना। तो ये 2 घंटे में ये सब समझाना तो कठिन चीज है, मगर अगर कुंभक करते हैं ना तो ही उसका इफेक्ट होता है। एक समझ लो प्राणायाम का। इसीलिए जो मुख्य प्राणायाम उसको अष्ट कुंभक बोला है, अष्ट कुंभक। मगर यहाँ पे कुंभक नहीं दिखा सकते, इतना समय नहीं है मेरे पास आपको सिखा दे। और नियमित अगर देखो योग 2-4 दिन किया, शिविर में किया, 8 दिन किया, आज किया, कल नहीं किया, दोपहर को किया, आज जाने दो, आज लेट हो गए, तो उसकी इफेक्ट कभी भी नहीं होगी, कितने भी साल करते होंगे। तो नियमित योग करना है तो हम लोग के क्लास जो है सोम से शुक्र, मंडे टू फ्राइडे नियमित रहते, कुछ भी हो जाए। ये तो चलो ये ऑनलाइन होगा, कितना भी बारिश होए, कितना भी कुछ होए, मगर आज तक कभी बंद नहीं हुआ, फिक्स टाइम। तो योग का एक है कि चौक्कस समय, चौक्कस मात्रा में, चौक्कस के व्यक्ति के पास अगर चौक्कस करेंगे तो इसका इफेक्ट तुरंत होता है, तुरंत। अभी तीसरा जो है, कल मैंने आपको नाड़ी के बारे में बताया था। राइट साइड का जो नाड़ी है वो सूर्य नाड़ी है, लेफ्ट साइड का नाड़ी है वो जो चंद्र नाड़ी है। कल मैंने ये भी बताया था कि बॉडी का जो टेम्परेचर है, यही 2 नाड़ियां जो है वो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है। मगर अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है उसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोला है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। देखो ये दोनों मुख्य नाड़ियां है, मगर ऐसे कहा जाता है कि 72,000 अंदर नाड़ियां है, और उससे भी ज्यादा वो जो केशवाहिनी बोलते हैं वो तो असंख्य है। तो उनको देखो हर एक नाड़ी में, नाड़ी माने ऐसी और उसमें फ्लो चलता है। तो जब उसमें फ्लो चलता है तो बहुत सी जात की छोटी 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 रुकावटें अंदर आती है। तो ये नाड़ी शोधन माने नाड़ी साफ करने वाला प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम। तो कैसे करना है, अगर कुंभक के बिगर आपको हम लोग करेंगे, क्योंकि कुंभक तो मैं अभी पॉसिबल है, सभी नहीं है इसलिए। तो ऐसा करना है, देखो एक तो राइट हैंड लेना है। देखो राइट हैंड का मतलब क्या है मालूम है? हम लोग का ये जो नाड़ी है, ये राइट साइड का, ये सूर्य नाड़ी है, और हम लोग की जो उंगलियां भी है ना, ये हर एक उसका प्रतिनिधित्व करती है। ये जो है अंगूठा जो है अपना, ये ये अग्नि का प्रतिनिधित्व करती है। ये जो है ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, अनामिका है और कनिष्का है, ये वायु का प्रतिनिधित्व करती है। और ये जो है ये पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती है, और जल का। तो जल और पृथ्वी वो दोनों ठंडे हैं, तो ये चंद्र के उस पे आएंगे, और ये जो है अग्नि है तो ये सूर्य नाड़ी पे आएगी। ऐसे करेंगे राइट हैंड से तो ही उसका इफेक्ट होगा। ऐसे लेफ्ट से पकड़ेगा तो ये उल्टा हो जाएगा, इफेक्ट उल्टी हो जाएगी। तो ये भी समझना है। तो देखो लेफ्ट से पहले पूरक करेंगे, और ये बंद करके राइट से रेचक करेंगे, फिर राइट से पूरक करेंगे और लेफ्ट से रेचक करेंगे। तो एक अनुलोम विलोम एक 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 अनुलोम विलोम होएगा। तो चलो स्टार्ट कर रहा है। ये देखो ये अपना अंगूठा है, तो जमने राइट साइड के इस पे लगाना है, और यहाँ से करना है। चलो पूरक, लेफ्ट से पूरक, अब राइट से रेचक करना है, राइट से रेचक। अब राइट से पूरक करना है, राइट से पूरक,
लेफ्ट से रेचक करना है, रेचक। अभी लेफ्ट से पूरक करना है, पूरक। राइट से रेचक करना है, रेचक। अब राइट से पूरक करना है, पूरक। लेफ्ट से रेचक करना है, रेचक। लेफ्ट से पूरक करना है, पूरक। राइट से रेचक करना है, रेचक। वहां से ही पूरक करना है, पूरक। लेफ्ट से रेचक करना है, रेचक। राइट से पूरक करना है, पूरक। राइट से रेचक करना है, रेचक। राइट से पूरक करना है, पूरक। लेफ्ट से रेचक करना है, रेचक। हाँ, जरा ठहर जाओ। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है। नाड़ी शोधन, अगर आप किताब पढ़ते होंगे तो किसी में नाड़ी शोधन भी प्राणायाम लिखा होगा। जैसे डीप ब्रीथिंग किया, उसको दीर्घ प्राणायाम भी बोलते हैं या उज्जाई प्राणायाम भी बोलते हैं, तो नाम पे इतना जाना ठीक नहीं है, मगर ये करना जरूरी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसा है, देखो दूसरे जो प्राणायाम है ना, उसकी मात्रा है। मैंने बोला था कि डीप ब्रीथिंग आप 15-20 कर सकते हैं। कपालभाति जो है 1-1 मिनट कर सकते हैं। 1 मिनट कपालभाति करते हैं, वापस 1 मिनट कर सकते हैं, वापस 2-3 बार ऐसे कर सकते हैं। भस्त्रिका जो प्राणायाम है, उसके 40 जितने श्लोक वो मार सकते हैं, कर सकते हैं। मगर ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, उसमें कोई बंधन नहीं है। वो अनुष्ठान के हिसाब से भी आप लोग कर सकते हैं। और अनुष्ठान का मतलब ऐसा है कि आप आधा घंटे भी कर सकते हैं, 1 घंटा भी कर सकते हैं, 2 घंटा भी कर सकते हैं। बहुत से लोग, बहुत महात्मा 2-2, 3-3 घंटा भी करते हैं। पर उसमें एक शर्त ये है कि जब भी करो तो उसके बाद में अगर हाथ नीचे रख दिया, हाथ नीचे रखा, तो ये वापस गिनती शुरू हो जाए, वापस 1 से शुरू करना पड़ता। तो जब अनुष्ठान करते हैं कि मैं 100 करेगा, 200 करेगा, तो आप लोग ने देखा होगा महात्मा लोग यहाँ पे ऐसे लकड़ी रखते थे और यहाँ ऐसे रख के ये करते थे कि हाथ नीचे नहीं जावे। माला भी गिनते हैं तो हाथ नीचे जमीन पे नहीं लगना लगता है, इसीलिए करते थे। ये जो प्राणायाम करते हैं तो इस हिसाब से करते हैं। तो ये जो प्राणायाम है वो आप कितनी भी बार कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। देखो, जो भी आपके मन में जो शंका कुशंका थी, अगर होएगी, अगर आप जो मानते हैं वो सही मानते हैं तो वो भी सही है। मैं ऐसे नहीं बोलता है कि आप गलत करते हैं कि गलत नहीं करते, वो नहीं। हम लोग का कहना, जो हम लोग बाहर देखते हैं और लोग करते हैं और उसका इफेक्ट नहीं होता है, तो वो लोगों को इफेक्ट मिले, इस वजह से सही दिखाने की कोशिश है हम लोग। भाई सही करावे। मैं ऐसे आपको कोई वो नहीं बोलता कि आप गलत करते होगे कि करते हैं। मेरा काम है सही बताना। कितना समझे, कितना करे है, कितना करना है, वो आपकी मर्जी की बात है। पहले भी मैंने बताया, देखो ये 1-2 दिन की क्रिया नहीं है। ये क्रिया ऐसी है कि जब तक जितना खाना आप लोग रोज खाते हैं उतनी बार करना चाहिए। और आज के माहौल में आप ये नहीं, अपने इंडिया में तो योग जानते हैं, दुनिया भर में लोग अभी योग के सिवा योग कराओ, योग कराने वाले कम पड़ेंगे, आपको मिलेंगे भी नहीं। एक समझ। तो और मैं दूरंदेशी की एक ये करता हूँ। मोदी साहब की जो दूरंदेशी है, उनको मेरे को लगता है पहले से ही ये हो गया होगा, 4-5 साल पहले,
कि ऐसी कुछ बीमारी आएगी और दुनिया भर को ये योग और प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा। कितने पहले से ही उनकी सोच होगी। आप समझो 5 साल पहले पूरे दुनिया को और दुनिया में वो मान्य करा है कि ये विश्व योग दिन, अभी 21 जून को विश्व योग दिन आता है। तो शुरुआत आप कल से भी कर सकते, कल 1 तारीख है, 1 तारीख से भी जुड़ सकते। मगर मेरे को मोदी साहब को सलाम करने का मन होता है कि उनकी सोच आगे कितना सोच है और कितना उनको ये मिलता है, क्योंकि वो भी देखो ये भविष्य का योगी जो है ना, वही भविष्य का जान। और एक उनकी बात है कि रोज 2 घंटा योग करते ही है और उनका स्ट्रेंथ आपने देखा होगा। आज 70 साल में भी वो 22-22 घंटे तक काम करते, मगर कभी भी उनके चेहरे पे थकान नहीं देखी, कोई चिंता नहीं देखी। या ये योग की ये है। तो आप लोग भी सब स्वस्थ रहो, स्वस्थ रहना है, अस्वस्थ करना है। तो ये सब बातें हैं। और भी बहुत सी बातें मैं कल आपको बताया था, शवासन की क्रिया कराई थी। आज भी 5 मिनट अगर आप सबको आपकी इच्छा है तो मैं शवासन करा सकता हूँ। देखो ये इसका इफेक्ट मन पे कैसे होता है ना, वो मैं आपको बताऊंगा कि मन पे इसका इफेक्ट। देखो आदमी सबसे ज्यादा दुनिया में अगर जो गोली बिकती है ना, तो सोने की गोली बिकती है। और सो जाने की, सोने की माने सो जाने की। और जो गोली नहीं देता है वो नशा करता है, नशा करेगा तभी उसको नींद आती। मगर योग में ये इतना इफेक्टिव है कि 5 मिनट में आपको लगेगा कि बहुत गहरी नींद आ गई। मगर कोई कराने वाला चाहिए तो एकदम बैठ जाओ, अगर लेटना है तो लेट जाओ, अगर फोन बाजू में रखना तो मैं उठाऊंगा तो आप उठ सकते। चलो फटाफट कर दो, आंखें बंद कर देना है, आंखें बंद कर दो सब लोग, आंखें बंद कर दो। देखो मेडिटेशन तो अभी नहीं हो सकता, मेडिटेशन ऐसे 2-5 मिनट का काम नहीं, मगर ये हो सकता है। बहुत सी जगह पे इसी को ही मेडिटेशन बोलते हैं, रिलैक्सेशन को ही मेडिटेशन बोलते हैं, और सब लोग मान लेते हैं। आंखें बंद कर दो और मैं बोलूंगा पूरक रेचक, गहरी श्वास लेना है, छोटा है। चलो पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। आंखें बंद ही रखना है। पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। बहुत शांति, बहुत शांति, खूब शांति, खूब शांति, खूब शांति, खूब शांति। देखो धीरे धीरे मन में से विचार कम होते जाएंगे। अपनी आंखों पे वेट, आंखों पे वजन बढ़ते जाएगा। गहरी नींद में जाते जाएंगे आप, गहरी नींद में जाते जाएंगे। मन में से विचार कम होते जाएंगे, मन शांत होते जाएगा, मन बहुत 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 शांत होते जाएगा। आज पहले कभी भी इतनी शांति का अनुभव नहीं किया था, उतनी शांति मिलेगी। 5 मिनट में गहरी नींद में
रिलैक्स हो जाओगे। बहुत रिलैक्स हो गए हो, बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हो, रिलैक्स महसूस कर रहे हो, बहुत रिलैक्स महसूस कर रही हो, रिलैक्स, बहुत रिलैक्स महसूस कर रही हो, रिलैक्स महसूस कर, बहुत शांति, 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 बहुत शांति। मन एकदम शून्य हो गया है, कोई विचार नहीं है, कोई चिंता नहीं, कोई हताशा नहीं, कोई निराशा नहीं, नहीं डिप्रेशन है, खाली खुशी, आनंद, प्रसन्नता, भीतरी आनंद, अंदर का आनंद, अंदर से प्रसन्नता, अंदर से सुख की अनुभूति और खुशी ही खुशी। मैं आज बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत आनंद है, मैं प्रसन्न हूँ, मन मेरा बहुत शांत है, बहुत शांति, बहुत शांति, बहुत शांति, बहुत शांति, बहुत। हाँ, अभी धीरे 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 देखो, ये जैसे शवासन में अंदर जाना है वैसे ही बाहर निकले, बहुत धीरे धीरे, जरा भी झटके से उसमें से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि अपनी मन की स्थिति चेंज हो जाती है, बदली हो जाती है। तो धीरे धीरे मैं मेरी मूल स्थिति में, कॉन्शियस अवस्था में, जागृत अवस्था में वापस आ रहा हूँ। धीरे धीरे फिर से मैं मेरी मूल स्थिति में, कॉन्शियस अवस्था में फिर से वापस आ रही हूँ। बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत आनंद महसूस हो रहा है, बहुत शांति, बहुत शांति, बहुत शांति, बहुत शांति, बहुत शांति। हाँ, अभी धीरे धीरे स्वस्थ होना है, धीरे धीरे जरा स्वस्थ हो जाओ, धीरे धीरे स्वस्थ हो जाना, आंखें खोलना है, आंखें खोल दो, स्वस्थ हो जाओ। देखो, 2 दिन की मैं शिविर आपके साथ की, 2 दिन आपके साथ गुजारे। अभी ये ऐसा माहौल हो गया है, ऐसा मीडिया ये हो गया है, मैं आपको पर्सनली सामने सामने देख नहीं सकता हूँ, आप मुझे नहीं देख सकते, मगर जो नया माहौल आया है वो नया माहौल को भी स्वीकारना पड़ेगा, उसी हिसाब से कार्य करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने बहुत से सुझाव दिए, अगर जिंदा रहना है तो खाली प्राणायाम नहीं, उसके नियम भी पालन करने पड़ेंगे, तो उसके नियमों का पालन करना। अगर अच्छा लगा है, अगर मेरे इसमें अगर जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं, अच्छा लगा है तो आप मैसेज भी कर सकेंगे। मेरा ये प्रयास है ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश रखना, स्वस्थ रखना, निरोगी रखना। सबको मेरी तरफ से, मेरी संस्था की तरफ से जय भगवान, सबको जय भगवान। जय भगवान। आप सब लोगों ने योग के बारे में, डीप ब्रीदिंग, कपालभाति, मस्तिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम जाना और सीखा। आपने शवासन का भी अनुभव लिया। मैं अब समीर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स दे। थैंक यू। जय भगवान। जय भगवान। फिर एक बार योग शिविर से, टीम योग शिविर से मैं समीर बालानी, योग गुरु श्री किरीट सर आयोजित योग प्राणायाम वेबिनार के दूसरे दिन में जुड़ने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं, अभिवादन करता हूं। 2 दिन में योग गुरु ने आपको प्राणायाम समझाए और सिखाए भी, लेकिन रेगुलर करना जरूरी है। रेगुलर करने के लिए हमारे क्लास गूगल मीट पे मंडे टू फ्राइडे
7:30 से 8:30 बजे तक चलते हैं, जिसमें जुड़ने के मैसेज और लिंक आप सबको इस वेबिनार के बाद आज के दिन में भेजी जाएगी। आज के कोरोना के माहौल में इम्यूनिटी हाई मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड वाइड सभी डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि मेडिसिन के साथ प्राणायाम और योग ही जो चीज़ है जो आपकी इम्यूनिटी को बिना मेडिसिन हाई कर सकते हैं। तो आप लोग भी रोज प्राणायाम करिए। चाहे तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी गूगल मीट पे, जिसका मैसेज और लिंक हम आज भेज ही देंगे आपको। सर ने सब सिखाया और समझाया भी, लेकिन ये वेबिनार करने के पीछे हम 1-2 जन नहीं लगे हैं, हमारी पूरी टीम लगी है। सर हमारे कैप्टन है और हम बाकी 10 मेंबर है, यानी हमारी 11 जन की टीम है जो इस कार्य के पीछे लगी है। और ये 2 दिन की सफलता का राज ये सब 11 जन की मेहनत का परिणाम है। हमने गूगल के फॉर्म बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, आपको मैसेज भेजे और लाइव वेबिनार या यूट्यूब पे भी आपके सवालों के जवाब दिए गए हैं। ये सब चीज़ हमारी बाकी टीम ने की है, जो टीम भी चाहती है कि आप सबका धन्यवाद करें, आपको शुक्रिया दे। तो लेट्स वेट फॉर 2 मिनट, वी ऑल विल बी ऑन स्क्रीन, सो लेट्स हैव टीम योग शिविर ऑन स्क्रीन। पहले हमारे हैं अश्विन भाई मेहता। शायद वो आज किस वजह से जुड़ नहीं पाए हैं। फिर हमारे भूषण भाई सेठ, जय भगवान। पिंकी बेन शाह, श्रद्धा अड़तिया, श्रद्धा अड़तिया, बोलो जय भगवान। पंजाबी, जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान। शालिक गांधी, ચેટ ચાલુ છે અહીંયા વાંચવાનું જય ભગવાન। हर्षिल झा, वीडियो ने ऑडियो बनने चाहिए। बोलो जय भगवान सर। अरे हर्षिल झा, जय भगवान। અત્યારે ચાલુ છે ઓડિયો વિડિયો બંને ચાલુ। हर्षिल झा, परेश झा, जय भगवान। और हमारे टेक्नीशियन पूरी चीज के पीछे जिसका बहुत बड़ा सहयोग है, वो दर्शन जय कानानी। भगवान। प्लीज दर्शन कानानी अपने आप को स्क्रीन पे लाइए। કયું તમારું આવ્યું? તમારો ફોટો ના આવ્યો? હા એ તો તમે હતા। એ બધું આવ્યું। दर्शन कानानी, यस, ये प्लेयर है ये पूरे इवेंट के पीछे। दर्शन जी ग्रिड व्यू कर दीजिए। हम सब एक साथ में सबका शुक्रिया अदा करेंगे, सबको धन्यवाद करेंगे। जय भगवान। ग्रिड व्यू करिए। We are on grid view. जय भगवान एंड जय थैंक भगवान। यू वेरी मच। धन्यवाद।
हम लोग आप सबको भी हमारी ये स्क्रीन पे जोड़ रहे हैं, जाइएगा मत, सबको स्क्रीन पे जोड़ रहे हैं और सबके फोटोग्राफ्स हम ग्रुप में शेयर करेंगे। जय भगवान। હોસ્ટ નથી બનાવ્યો એટલે હું એડ નહીં કરી શકું। તને ગ્રુપમાં પેનલિસ્ટમાં એડ કરી દે। स्पीकर लगा। જય ભગવાન બધાને। जय भगवान बधाने सर। जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान। તો બધાના વિડીયો ચાલુ થવા જોઈએ। વિડીયો ઓફ છે બધા। વિડીયો બધાના ઓફ છે। આવી ગયું। આ બધાના વિડિયો ઓન હશે તો ફોટો લઈ શકાશે। વિડીયો બંધ છે મતલબ ના થઈ ગયા છે હવે ચાલુ। ઓકે। બહુ ઓછા લોકો જોઈન થયા છે, હજી મલ્ટિપલ પેજ નથી હતો, એક જ પેજમાં આવી ગયું। એટલે પાર્ટિસિપન્ટ રહે જતી રહે। नहीं नीचे नहीं। हाँ अच्छी नीचे अब ऑडियो वीडियो बंद हाय भूषण, जय भगवान। जय भगवान संजय।
ઓકે સમીરભાઈ તમારો અવાજ નથી આવતો, તમે કંઈક બોલતા હતા. વાત નથી આવતો. મારે unmute જ છે. You should stop live streaming. રાજુભાઈ હતા આખા પ્રોગ્રામમાં? તમારો મ્યુટ પર છે, મ્યુટ પર છે ભાઈ. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. જય ભગવાન જય ભગવાન બધાને. જય ભગવાન બધાને. સર જય ભગવાન. જય ભગવાન. સર જય ભગવાન. હા, હવે મેક્સિમમ વિડિયો ઓન જ છે. આ અવાજ છે ને ઓલા પરેશ ને પિંકી બંનેનો મોબાઈલ ચાલુ લાગે એટલે એકદમ મ્યુટ પર રાખવો પડે. સર અમારા રોટરીના આવતા વર્ષના પ્રેસિડેન્ટ રાજેન્દ્ર ભાટિયા બી છે આ પ્રોગ્રામ. હા, જોયા મેં. જોયા ને? ઓળખું છું. ઓળખો છો ને? હા. એનો ટિકિટ બી છે. એની ઈચ્છા છે જોડાવાની આ ક્લાસ.